This And conference will now be Yes. recorded. yes, and got listed in the month of in 2013, and after that we have got data from BSE, and its CAGR is from the listing time is sorry, CAGR since last 10 is 14.45. Okay. 15% growth, right? Yeah, around that, right? Okay. And it is having a good margin. Average margin is around 22.28%. That is a good margin. Okay. And Right. Good margin. yes, and it is from an emerging sector, we can say, right? Yeah. Correct. So, and it is the best among this sector. Okay. That is right. As per your data, Rajendra bhai, during last 11 years, how many times sales have fallen? Sales have fallen only once. That is in the current year, and a profit. So this is the first time. Yes, and profit. Right. Profit was down once only. That was on 2017. Right. Right. Okay. So what do you expect from 2021 with Wonderla? Right? As Corona is already there, we are not going to go to resorts. So yes, what you will expect? Sales will increase or decrease? no, sales has to decrease, or sales has to decrease, and Okay. after this Corona situation over, it will start improving after this. People are not going out also, because current year growth is negative, minus 7.22. Okay. Where you have written here, right? Yes, current. Right. Yes, sir. Okay. And the projected sales in the after 10 years from now, from up to 2030 is 1041, with the profit rising to an estimated profit is around 469, and the intrinsic price, as you said, is around 2721. Okay. Right. So we will expect this company to make sales of 1000 crore, right, man? That will be good thing. Yes, sir. Okay. And this year you have estimated that sales should be falling by 7%, right? Yes. Yes, sir. Okay, Rajendra ji. What we can do here, just 15 days sales. I think lockdown was from 22 or 23, and in India. Yes. Yes, sir. Yes, just sir. last 10 days sales has affected a 7% degrowth in this company. Yes. This year, if 3 to 4 months will be bad, I think their sales should be down 25 to 30%. Now, this is our estimate. We may go wrong, we may go right. Yes, sir. Yes, sir. But sales should be falling around 25%. And if sales will fall 25%, we will estimate that this company can fall, their profits may fall by around 50%. Yes, sir. This year. Yes, sir. Because some costs are continued, they can't decrease their cost. Yes, sir. Right? Some cost will be recurring cost, but sales 25% profit, 50%. So your valuations will come down. Right? Yes, you will estimate only, I think so, if the EPS is 11, you can estimate around 6 rupees EPS, for example. Yes, right? sir. Short term. Then your valuations will come down this year. It's all right. Yes. Yes. Considering current year a bad sector, a bad year for this type of company, we should sell this company, or what should we do? See, if the company is good, we should buy on declines. Okay, right. So that is the same thing which I am doing. Yes, sir. We are learning from you, sir. We are learning from you, sir. I have learned from my past experience that what happened whenever some good opportunity came, sales or their share price always come to 52-week or lifetime low. And I was not buying during that time. Actually, I was supposed to buy at that time. So I will not repeat the same mistake which I have done in past. Right? But sir, I will be prepared also. And I will not expect that, okay, it will run immediately. Right? Sir, I learned a very important thing from you. First of all, is the quality of the company. If it is good, then whenever there is a recovery, those quality companies are going to bounce back very sharply. Absolutely. So basically, if the fundamentals are good, the company is good, the decline should be utilized for buying. Yes, sir. Right. And, absolutely. Yes, sir. And you are prepared. You know why you are buying. Right? Yes, sir. Yes, sir.
Shall we move to this next Yes, company? yes, please Okay. do, sir. Please, sir. That's the Webco. Okay. Yes, sir. So Webco also it is having a very small equity, 9.48, and the sales, yes, and the CAGR from that day of inception is 3.53, and since last 5 years the CAGR is 7.44 from 2015. Okay. And yes, and the sales has gone down twice. Right. Okay. And the profit has come down 4 times. Right. Yes, profit has come down 4 times. So as you said, profits are more volatile than sales. So it is clearly visible here. Okay. So this company was able to grow from 500 crore to 2000 crore when the automobile sector was wonderful. And almost we can say 3000 crore, hai na? Yes, 500 sir. to 3000. But when parent industry, auto industry is not growing, it's suffering since last 2 years. We have seen the effect this year, right? Yes, sir. Yes, sir. So when you can expect this sales again in uptick? Sir, that would be after the COVID situation is over, when the movement starts and when the sector improves. It is only after the sector, I mean, it is a bit conservative sector. Right. Now, how you will know that sector is improving in advance? See, we will not wait for this result, right? We can estimate in advance that, okay, this time results are going to boom. How can we estimate? Maybe the rise in price. Short term? No, see, rise in price is due to buying, which big investors are doing. But we should know why they are buying, right? Because we are sitting with these big investors. So our decision and their decision should match. Yes, sir. Right? So we should know in advance that, okay, this Webco sales are going to grow now, right? Yes, sir. How we will be able to know from sales data of this auto company? Right? Okay. Auto company will publish their data that our Maruti sales have increased, our Maruti sales are decreasing. So whenever you will see that now sales of this two-wheeler industry, four-wheeler industry are going to get up, then after you can estimate that now as main parent industry is going up, we will see auto ancillary also move up. Yes, right? Sir. Yes, sir. Yes, so yes. There are always indicators who will indicate you in advance. Okay. So we should think about, we should look at the parent companies as well. Yes, sir. Yeah, definitely. Thank you, sir. So now here in this company, what do you think? Company is good or bad? The company is good. Company definitely is good. But we are, since the industry is a bit conservative, growingly right now, it is growing conservatively. So we should be cautious. Right. Company is good. Definitely. Correct. So they are having good margins. Right? Yes. A very low equity and high sales. So company is high quality, but growth is not there, and we are not going to scale it till there is degrowth. Right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So which was your next one? TCS. TCS, yes, sir. Okay. Yes. Okay. Yes, sir. What you will say about TCS? This is the largest company of this sector, and with the CAGR. Rajendra bhai, I have muted everyone because there was disturbance coming from somewhere. So kindly unmute again, right? Unmute again and then explain. Okay. Yes, sir. Yes, please. So since 2005, the CAGR is around 20%. Okay, 20% CAGR, right? And after 2015, the sales and profit, they have degrown a little. Yeah, it is not as strong like last decade. Yes. That's the reason long-term growth I have taken as compared to 2010. Right. Okay, they are correct. Don't take this 15 growth, 2010 growth, 2010 growth is okay. We know that, see, this IT industry, biotechnology industry, these all industry are doing 80% turnover from developed countries. Yes. Right? From Europe, from US.
Now they are already in recession since last 3 years. Yes, sir. Whole world, which was growing by 8%, have grown only by 4 to 5% post 2000. Yes, so sir. this century is not good for whole world, but still, yes, if India is outperforming, that's good. But this effect you are seeing here, yes, sir. Yes, sir. we can't expect that despite world will not grow, industry will grow like anything. It is not possible, and we need good growth from whole world. All countries are connected with each other, right? Yes. So here is a very good lesson, Rajendra ji, that if you want to search a company which is going to rally 20 times, 40 times, or 50 times, you will have to search a company whose profits can multiply 16 times in 15 years. Yes, sir. Got it? Yes, sir. There is a wonderful book on this topic. I forget right now book. Milind Bidve can guide you in this thing. Right? He is having very good bunch of books. Yes, I forget the topic of that book, but its name was Searching Multi-Bagger. Okay. And what he has said, if you want to search multi-bagger, just search companies whose sales and profit are growing by 15 times. Yes, sir. Right? So each and every company which you all have done research have same magical thing in their, right? Yes, sir. It was a wonderful learning from you, sir. Planning? Yeah, what's the future planning for TCS? Best, again, buying on declines, the best among the sector. Okay. See, this is a wonderful thing, which we will not see in any companies. Magnificent growth. Never ever their sales have grown down, Rajendra. Never. Yes, never, sir. Never ever. So that's good. Even in 2009, when there was 2008, when there was a bear market worldwide, their sales were growing. This is indicator of a wealth creator. Yes. Right? Yes, sir. Yeah, okay. So I have also accumulated just during this fall. Sir, okay. We are learning from you, sir. Thank you very much, sir. Yeah. Thanks, Rajendra ji. Let me move towards next participant. Yes. I'm moving from A to Z. Okay, from upside. Still, I could not understand. Some person have written his name just alphabet A, right? So his name is first. I should actually invite you if you can unmute yourself, but I don't know your name. Who are you, right? Or yeah, Amol is there. Yes, Amol. Yes, sir. Can you hear me? How are you? Yes, yes. I'm fine, sir. How are you? Clear. Fine, fine. So Amol, how was your experience while you were researching on your companies? It was good, sir. Totally new. So many, everything totally I learned new only. Yeah. Okay. Nothing was known for me. Yeah, Maruti. What you have discovered from this data of Maruti? So from this research, I discovered means how company from long term, how it is growing. Now in terms of sales or in terms of profit, how is the performance of the company. Yeah. So these things came to know from this research. Okay. So when Amol, I was not doing this research na, I was always afraid. अरे sales घट गया तो क्या? अरे ये profit घट रहा है मैं क्या करूं? बेच दूं? Even I was selling. You can believe I was selling whenever profit was down only quarterly. Whenever profit will be down in any particular quarter, I will afraid and sell here. So that were my ridiculous mistakes, right, which I have done in past. But now I understand, okay, it's all right. I'm going to see these ups and downs in my life, right, if I am in businesses. So what data you studied for Maruti? These things only. मतलब ये रिसर्च करने के बाद एक आइडिया क्लियर हो गया कि चलो कभी कभी सेल घट भी जाए या प्रॉफिट घट भी जाए तो भी ऐसी सिचुएशन में बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ये डेटा बता रहा है हमको कि अगर हम बेच देंगे तो आगे का हमारा जो आगे की जो मिलने वाली ग्रोथ है, जो भी मिलने वाला प्रॉफिट है, वो हम मिस कर देंगे। तो हो सकता है अभी जैसे
सेल्स में 3 बार इसका सेल्स काफी बार घट चुका है अच्छे से, और 5 टाइम तो उसका प्रॉफिट भी घट चुका था। तो ऐसी Right. चीज अगर ये रिसर्च ना करो तो डर के मारे तो बेच ही देते कि नहीं ये तो हाँ। कंपनी गिर रही, क्यों रखना है इसको, उसके बजाय कोई और कंपनी सिलेक्ट कर लेते। तब Right. ऐसा अगर करते जाएंगे बिना बिना नॉलेज के, तो जाहिर सी बात है जो आगे मिलने वाला जो ग्रोथ होता है 20% CAGR जो भी मिलना रहेगा वो तो मिस हो जाएगा। तो हो सकता है वो सही सब बात। चीज इस रिसर्च से वो सब चीजें हम उस सब चीजों से बच सकते हैं। राइट। गोल गोल ही घूमते रहेंगे, एक कंपनी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, कुछ मिलेगा नहीं, है ना, अगर ऐसा करते रहेंगे तो। हाँ और देखो यहाँ पे मारुति से एक सीखना चाहिए कि मारुति के सेल्स 3 बार घटे हैं, है ना। हाँ तो ये क्या इंडिकेट करता है आपको? 3 बार सेल्स घटे और 1 2 3 5 टाइम्स प्रॉफिट घटे लास्ट 17 ईयर्स में। इससे क्या सीखने को मिला? ऐसे इसमें हम ऐसे अकुमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस सही है तो ऐसे जब सेल डाउन हो जाता है, फिर प्रॉफिट डाउन हो राइट। जाता है, तब प्राइस भी घट जाता है। तो ऐसे ऐसे समय पे हम उसको जितना हो सके अकुमुलेट कर सकते हैं इस बराबर है। शेयर को। पर एक चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा अमोल, कि जैसे अभी हमने वंडरला देखा, अभी हमने और कौन सा कंपनी, टीसीएस देखा, किसी के सेल्स हाँ इतनी ज्यादा बार डाउन नहीं हुए थे, पर नहीं हुए थे। मारुति के सेल्स 3 बार घटे। मतलब प्रिपेयर रहो, हाँ भविष्य में भी सेल्स और प्रॉफिट में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। राइट है कि नहीं? ये हमें इतिहास हाँ बताता है कि कैसा इनका बिहेवियर है, बराबर ना। तो एक्सपेक्ट भी हाँ ऐसा ही करने का। ऐसा मत सोचना कि मेरे लेने के बाद कभी गिरेगा नहीं सेल्स। राइट। यस। ओके, तो आपने इससे क्या एस्टिमेट लिया भविष्य का? ऐसे अगर 2030। ओके। yes, राइट। जो दो अभी लाख जैसे करोड़ का टर्नओवर। हम्म। हाँ बराबर। राइट। और आपका प्राइस टारगेट कितना है? 9500 का। यस, ओके ओके ओके। और आप बट ये प्राइस तो 2700 ऑलरेडी जाके रिटर्न आ चुका है सर। कितना? जो हमने 2030 का जो प्राइस निकाला है वो तो ऑलरेडी हाँ जाके आ चुका है। मतलब 2018 में ही वो 10,000 तक चले गया था। फिर और हाँ 10 हाँ। साल भी शायद से वो उतना ही रहेगा, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, फिर उससे कम भी हो सकता है, क्योंकि ये इतना बराबर। वोलाटाइल है ना। इसके प्रॉफिट देखो, सेल देखो, तो थोड़ा उतना ये नहीं लग रहा जो इंटेंस ओके। जो 2030 का राइट। प्राइस निकाला है। बराबर है। देखने दो मेरे को सारी चीजें। अच्छा, आपने ग्रोथ कितना लिया है? प्रॉफिट ग्रोथ 10% लिया है हाँ सर। लॉन्ग टर्म। ओके, और इसका प्रॉफिट कितने परसेंटेज से बढ़ा है? 10% से। ओके, ये कितने साल का है? 10। 5 इयर्स का। और 17 ईयर्स में कितना बढ़ा है? 15%। ओके ओके, राइट, कोई बात नहीं। दूसरा कौन सा कंपनी है आपका? M&M। ओके। यस। यस, क्या हुआ M&M इसमें में? सर आपको वो क्या सीखने को मिला? नहीं, वो पूरा नहीं कर पाया जो प्रॉफिट इस बार जो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले अपडेट हुआ है ना, निगेटिव आई। हाँ। लास्ट टाइम एक राइट। सेमिनार में आपने बताया था कैसे कैलकुलेट करना है, बट मैं भूल गया, उसके वजह से मेरा प्रॉफिट बराबर है। नहीं निकल रहा था, तो इसलिए ये बच गया करना ही। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये घटना कैसी है? पिछले 17 साल में ऐसा कब पहले हुआ है कि M&M ने लॉस किया हो? बहुत ही कम बार, मतलब करीबन 20 साल में सिर्फ 3 ही बार हुआ है, यानी नहीं 15 के नहीं बाद नहीं, फिर अब भी मैं 20 कह में रहा हूँ हुआ ही। लॉस किया हो कंपनी ने। इस बार लॉस किया ना? ऐसा लॉस पिछले हाँ, 17 20 साल में कितनी बार? एक भी बार नहीं किया, एक भी बार नहीं। एक भी बार नहीं। तो ये यस। अजीबोगरीब घटना हुई। जिंदगी में हाँ पहली बार ये कंपनी ने लॉस किया है। राइट। हाँ। इनके रिजल्ट्स में एक्सेप्शनल आइटम था, वो देखा था आपने? हाँ नहीं, उतना ध्यान नहीं दिया सर। देखो, कभी भी क्या करने का, कभी कभी कंपनियों में, मैं ये ओपन करता हूं, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओके।
ये स्टैंड अलोन है। हमेशा कोई भी कंपनी का रिसर्च करते हो ना, एक ये चीज देख लेने की कि उनको बिजनेस कौन से सेगमेंट से आता है। ये दिख रहा है सेगमेंट। ओके। सेगमेंट जैसा मैंने कैसे बताया हाँ। कि टीसीएस का 80% टर्नओवर डेवलप्ड कंट्री से आता है, क्योंकि उन्होंने लिखा है अपने सेगमेंट में। तो मुझे ध्यान रहेगा ओके। कि भाई ये आईटी कंपनियां डेवलप कंट्री पे डिपेंड रहेगी। डेवलप कंट्रियों में तेजी रहनी चाहिए, मंदी रहेगी तो मजा नहीं आएगा। वैसे अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा का रिसर्च स्टडी कर रहे हो तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का मेजर बिजनेस कहां से आ रहा है? ऑटोमोटिव से। ऑटोमोटिव। दिख रहा है ना यस। ये? फार्म हाँ इक्विपमेंट सर। से कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। ये तो स्टैंड अलोन का है, पर जस्ट देख रहे हैं हम लोग कि मेजर धंधा इनको हाँ, किधर से आ रहा है? ऑटोमोटिव से आ ऑटोमोटिव। रहा है। राइट। अब ये भी कुछ है टोटल, ये तो तीनों का टोटल है। तो अगर हम कहते हैं ट्रैक्टर इंडस्ट्री, तो ये इनकी ट्रैक्टर इंडस्ट्री। ऑटोमोटिव यानी बाकी के जो उनके बिजनेसेस है। राइट। हाँ। ओके, देखने तो मेरे को कंसोलिडेटेड। देखिए स्टैंड अलोन ये भी है। ओके, हियर इज कंसोलिडेटेड। राइट। See, their turnover is 96,000 crore this year. Last year they did turnover of 1 lakh crore. Correct? So this year their sales have decreased. Okay. Their total expense have decreased. Okay. Now see, this is very important, that their profit after this all expenses, that is before tax, before paying this tax, their profit was 2,600 crore versus 7,000 last year. So how much their profit were down? More than 50%, right now. Yes. Yeah. So you are going to see this thing in majority of automobile companies. So that is the reason Yes. their shares are down. Now you can see something here, exceptional item. Okay. Right? What is this exceptional item? You can see that they did a loss of 2,000 crore. Now 2,000 crore in exceptional item is a big thing. Just due to this 2,000 crore of exceptional item, they made a loss of 300 crore. Got it? Yes. Otherwise, their profit would be around 500 to 600 crore. Right? Yes. Due Yes. to this Yeah. exceptional item, so you have to search what is this exceptional item. You will able to see here down. Here it is written note 4. You can see here, just down scroll it. 1, 2, 3, 4. Here they have written and given you detail that what was this 2,000 crore, right? You can read at your own time. They have booked the loss Yes. due to this corona. 2,000 crore they have recognized the loss, and that's why this is a one-time loss. So next year this loss is Yes. not going to come, right? So you can count 500 crore profit just so that you can at least calculate this growth, right? We need to get prepared that on this, just a minute. Yeah, on this exceptional item also, they have paid a tax. It is not like that they have not paid tax, right? Yes. So your real Mahindra and Mahindra will show you minus 300 crore loss, but you can consider calculating this exceptional item that they should be making around 600 crore profit. It is written here 612 crore, right? Okay. Yeah. Okay. One more thing. See, here is their segment revenue. So you can understand this thing that automotive segment gives them 48,000 crore. Now, what is automotive? Four-wheeler industry. Their farm equipment gives them 21,000 crore. Financial service give them 12,000 crore. So how financial service can come into Mahindra and Mahindra? You know, Amol, why financial service sector is here? They are automobile company. There is उनका वो सब्सिडरी होगा कुछ ऐसा फाइनेंस Mahindra अवेलेबल and करा के। Mahindra Financial Service. सुना है ना नाम? हाँ सर।
महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस का ये महिंद्रा एंड महिंद्रा पेरेंट कंपनी है, तो धंधा इसमें भी ऐड होता है। अगर 50% Okay. का स्टेक होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल में, तो यहाँ 50% धंधा ऐड होगा, राइट। हॉस्पिटैलिटी, Yes. देखो हॉस्पिटैलिटी से 2500 करोड़ का टर्नओवर, हॉस्पिटैलिटी यानी क्या, महिंद्रा एंड महिंद्रा हॉलीडेज, राइट। तो इस प्रकार से जब आप देखोगे, अब ये डेटा आपको बाहर से नहीं मिलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आप ये पीडीएफ फाइल नहीं खोलोगे तो, कि महिंद्रा एंड महिंद्रा 1 लाख करोड़ का धंधा किधर से करता है, राइट। तो ये देखोगे Yes. तो बहुत सी चीजें नई सीखने को मिलेगी, बराबर अमोल। Yes, तो sir. चलो, आपको तो दोनों कंपनी जो आपने रिसर्च किया, दोनों का इस साल धंधा घटा है, राइट। तो करंट हाँ, ट्रेंड दोनों का हाँ. नेगेटिव है, बराबर की नहीं? Yes. Yes. ओके, क्या करेंगे अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति में? फिलहाल तो ये सब थोड़ा ये कोविड की वजह से इनके बिजनेस काफी घट चुके हैं, सेल्स और प्रॉफिट तो बहुत कम अमाउंट में, कम परसेंट में इनको अकोमुलेट कर सकते, ज्यादा नहीं, बट लाइक बहुत आगे बढ़िया, रिकवर होंगे। वेरी गुड। देखो यही मैच्योरिटी मेरे को चाहिए, कि अगर आप ले रहे हो, देखो लेने का अपॉर्चुनिटी भी तो हमको फॉल में ही मिलेगा ना, जब हाँ. धंधे डाउन है, प्रॉफिट डाउन है। ये चीज याद रखना आप, एवरीबडी, प्रॉफिट खाली डाउन होगा ना तो आपका शेयर 25% टूटेगा, 30% टूटेगा, खाली प्रॉफिट डाउन होगा तो। पर अगर सेल्स डाउन हुआ तो आपका शेयर आधा हो जाएगा, 61% टूटेगा, 70% टूटेगा, क्योंकि सेल्स गिरने से प्रॉफिट पे ज्यादा इफेक्ट आती है, राइट। तो आपको बहुत ही सस्ते मिलेंगे, पर लेने के बाद अमोल एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि तुरंत चल जाए। जब तक सेल्स नहीं बढ़ेंगे, डोंट एक्सपेक्ट योर शेयर विल रैली। यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे सेल्स बढ़ने की कोई भी इंडिकेटर मिले, तब आप एक बड़ी क्वांटिटी बाय कर लो, बराबर, क्योंकि फिर वापस ऐसी अपटिक चालू, बराबर है। यस, यस सर। ओके, और कौन सा आपका ये वीबीएल था ना, वरुण हाँ बेवरेज? सर, वीबीएल। यस, क्या सीखने को मिला बोलो अमूल वीबीएल से? वीबीएल से तो इनका काफी अच्छा ग्रोथ है देखा जाए, बट इनका भी प्रॉफिट 2 बार लॉस हुआ है, बट एक तब बीएससी में इसका रिजल्ट नहीं है, बट वो लास्ट जो 2016 का एनुअल रिपोर्ट है उसमें से मिला है, उसमें दिखा है कि 2 बार इन्होंने लॉस किया। ओके, तो बीएससी पे क्यों रिजल्ट नहीं है? 2016 तक ही है, वो लिस्टेड नहीं होंगे। हाँ, करेक्ट करेक्ट, इसका आईपीओ इधर आया। हाँ. देखो अमल, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि कितनी कंपनियां हैं जो अच्छी है, आपने मेक माई ट्रिप का नाम सुना है, बुक माई शो का नाम सुना है, वो लिस्टेड क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स। जैसे ही कंपनियां प्रॉफिट में आएगी, धीमे धीमे वो आईपीओ में आएंगे। देखो ये चीज आपको मिली वीबीएल में, वीबीएल लॉस करती थी, वो नहीं थे लिस्टेड। जैसे वो लोग प्रॉफिट मेकिंग होने लगे, क्योंकि उनको पता है इन्वेस्टर विल नॉट गिव देम मनी इफ कंपनी वुड बी लॉस मेकिंग। सब लोग तो आंख बंद करके नहीं डाल देते ना पैसा। यस, यस। वीपीएल में तैयारी रखो कि दिस कंपनी हैव मेड लॉसेस 2 टाइम्स। आप लोगे, आने वाले समय में भी ये लॉस कर सकती है। हिस्ट्री क्लियर नहीं है कि इन्होंने खराब समय में भी प्रॉफिट किए हैं, राइट। तैयारी रखने की। क्यों ये लॉस कर रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर डेप्थ हाई है, मार्जिन कितने हैं? बहुत ही कम है, बराबर है। यस सर। तो ये लोगे, और मान लो ये कभी लॉस करेगी 2023 में, तो बोलना मत कि क्यों लॉस किया। तैयारी रखने की लॉस की, राइट। आप आंख बंद करके निवेश नहीं कर सकते हो, बराबर कि नहीं? यस सर। ये सेक्टर में अमोल ग्रोथ हाई है, ऐसा ग्रोथ मुझे मिले तो मजा आ जाए। मजा आ जाए मतलब, अगर कोई भी कंपनी आपको 20% का ग्रोथ देती है, मतलब आपको एक वेल्थ क्रिएटर कंपनी मिली, प्रोवाइडेड दैट कंपनी इज लो डेप्ट। वीबीएल के केस में ऐसा है, दिस कंपनी इज नॉट लो डेप्ट, इसीलिए डर लगना चाहिए, राइट। दिस कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पेप्सी, तो पेप्सी की जो डिमांड जबरदस्त है। ये बेवरेज सेक्टर बहुत जोरदार सेक्टर है, आने वाले समय में बढ़िया सेक्टर ये ग्रोथ होगा, राइट। वो पेपर बोट पिया है आपने? पेपर बोट करके ड्रिंक आता है,
हाँ सर। देखा कहीं पे? जूस हाँ। जूस आते हैं पेपर बोट के, है ना? देखो अभी लॉन्च हुई वो 100-150 करोड़ करने लगे धंधा। क्यों? क्योंकि ये सेक्टर ही ग्रोइंग है। अगर हमें कोई डेब्ट फ्री कंपनी ये सेक्टर में मिले ना, तो मेरा भी प्लानिंग है, मैं 4-5% रुपया डाल दूंगा वहां पे। पर अभी कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो कम डेप्थ वाली हो, राइट? सो दिस इज ग्रोइंग इंडस्ट्री। ध्यान रखने का, एक्टिव रहने का। जैसे ही किसी कंपनी का आईपीओ आता है जो बढ़िया प्रॉफिट करती है, देखो 2013-14 में क्या करते थे। मान लो वो कंपनी प्रॉफिट करती है और ये कंपनी लॉस करती थी, तो आपका डिसीजन क्या कहेगा? जो प्रॉफिट करती है उस पे, इस पे ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि ये तो लॉस यही कर चीज रही है। सीखनी है। कंसिस्टेंसी की है, कंसिस्टेंसी चाबी है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की, बराबर है? यस। नहीं तो तेजी में तो घोड़े गधे सब दौड़ते हैं और हम फंसते हैं फिर, बराबर ना? हाँ सर। ओके, कोई चीज कहना चाहोगे आपने ये जो 3 कंपनी में रिसर्च किया उसके ऊपर, कोई खास इंपॉर्टेंट हाँ, चीज? ओके, हाँ, चलिए तो मैं नेक्स्ट आगे हाँ, बढ़ता हूँ। हाँ हाँ बोलो सर। बोलो, क्या कहना चाहते हो अमोल? कुछ नहीं, बाकी अगर मारुति और महिंद्रा से देखे, वो तो लॉन्ग टर्म में एक कुछ जजमेंट कर सकते हैं, बट वीबीएल में ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। बट आफ्टर आईपीओ इसका ग्रोथ बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ऐसा लगता है बहुत कि कुछ अच्छा। ज्यादा स्पीड से जा रही है, तो कभी गिरेंगे भी उतनी स्पीड से। नहीं ऐसा नहीं होता है अमोल, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी बहुत स्पीड से जाती है बहुत गिरती है। ये मेरी भी एक सोच थी कि वो जो बहुत चलते हैं वो गिरते हैं। अगर ऐसा होता तो तेंदुलकर तो बहुत स्पीड में रन बना रहा था, उसको भी गिरना चाहिए था, है कि नहीं? देखो परफॉर्मर परफॉर्मर होते हैं, बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं तो अच्छा है, इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी इंडस्ट्री डिमांडिंग है। ये अकेली नहीं, इनके जैसी दूसरी कंपनियां भी स्पीड में बढ़ रही होगी। लेकिन अगर ये कंपनी कंसिस्टेंट होती है, कम डेप्थ से अच्छा धंधा करती है, 5-6 साल हुए मैनेजमेंट ने कोई गड़बड़ नहीं की है, तो हम इन पे आशा रख सकते हैं। ऐसी कंपनियों में धीमे धीमे बाइंग कर सकते हैं। वीबीएल में थोड़ा डर है क्योंकि डेप्थ ज्यादा है, राइट? बाकी ये मत सोचना ओके। कोई ग्रोथ कर रहा है तो बहुत तेजी से दौड़ रहा है इसलिए खराब चीज है, राइट? वही तो उसकी खूबी है, बराबर? ओके। मारुति में सर एक था मारुति, हाँ, वो तो हाँ बोलो। ऐसी क्वेरी लिखी थी, वो तो मैं बाद में, इतना कुछ ये नहीं था। मारुति में जैसे हाँ उसका इंसेंटिव वैल्यू जो निकाली है हमने, हाँ हाँ। वो 25। 2672, या हम्म, बट उस प्राइस पे तो आना इम्पॉसिबल ही लगता है सर। तो ऐसे वक्त हमने क्या डिसाइड करना चाहिए? चलो इसमें थोड़ा तो भी हमें नहीं इन्वेस्ट करना है इस फॉल में, तो उसका ऐसा बराबर है। प्राइस डिसाइड किस वे से कर सकते हैं? क्योंकि वो आप उस प्राइस पे तो आना इम्पॉसिबल ही है। अब देखो ये 10,000 रुपया प्राइस था ना यहाँ पे 2018 में। हाँ सर। 2018 में तब उस समय के स्टूडेंट्स ने इसका वैल्यूएशन 3,500 निकाला था। अब मारुति जैसी कंपनी जो इंडिया की सबसे बढ़िया कंपनी है ऑटोमोबाइल में है, आप बोलोगे ये 10 वाली को मैं 3500 पे लूंगा तो लोग हंसेंगे आप पे, राइट? लेकिन ये लो देख रहे हो कितना यस, लगाया है इसने? ये 4,000 लगाया कि 4000। नहीं? हाँ मुझे सर। याद है बहुत से लोग बोलते थे पीयूष भाई 3700 कैसे आएगा? अरे सेल्स जब घटता है ना तो कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहता है। अब ये कंपनी ऑलरेडी काफी टूट चुकी है, देखो आधे से ज्यादा टूट चुकी थी, राइट? अच्छी हाँ टूटी हुई। अब ये 2700 तभी आएगा। कौन से केस में आएगा अमोल? आपने 2700 जी। तब एस्टिमेट लिया है अगर प्रॉफिट 4200 आएगा इस साल का। यस। 2020 का करंट प्रॉफिट ग्रुप के आपका हिसाब से। 5700 करोड़ है। मान लो इस साल भी प्रॉफिट टूटता है तो इसे 2700 आने से कोई रोक नहीं सकता है। पर मान लो इस साल यूटर्न आया और मारुति के धंधे और प्रॉफिट थोड़े भी बढ़े, बढ़े क्या, 0% ग्रोथ रहा, घटा नहीं ना, तो भी नहीं आएगा 3600। क्यों? क्योंकि आप सब लोग नेगेटिव एस्टिमेट करके बैठे हो। तो अगर 0% ग्रोथ भी इसके लिए पॉजिटिव है, राइट? और इस यस। कंपनी का ग्रोथ अगर 5% भी आया ना तो ये जबरदस्त चलेगी, क्योंकि आप नेगेटिव हो और इसका रिजल्ट आउट परफॉर्मिंग आया, बराबर? ये ऐसे चलता है। अब 27 का प्राइस पकड़ के रखो,
पर क्वार्टर 1 का रिजल्ट सबसे पहले आएगा। कौन सा रिजल्ट Yes. आएगा? सबसे पहले क्वार्टर 1। क्वार्टर 1 फिर आएगा क्वार्टर 1 प्लस क्वार्टर 2 इज इक्वल टू H1। जैसे जैसे ये रिजल्ट आते जाएंगे वैसे वैसे आपका रडार सेट होता जाएगा कि इस साल क्या होने वाला है। अगर ग्रोथ दिखे तो ये भाव नहीं आएगा, पर अगर ग्रोथ नहीं आया तो क्या होगा? ये भाव आएगा। बराबर है? Okay. राइट? ट्रैक रखना रिजल्ट पे। ओके? Okay. Yes, sir. So now let me move to next person, अर्पण राजपूत। अर्पण भाई, you can mute yourself, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और देखने दो अर्पण भाई ने कौन से सेक्टर पे काम किए हैं। यस अर्पण राजपूत, मेरे ख्याल से आपके बाजू में ऑफ लिखा हुआ है, यू विल नॉट एबल टू अनम्यूट, देखने दो। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग। आशीष, आशीष प्रजापति, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यस आशीष, आपने कौन सी कंपनियों में काम किया है? ओके पीवीआर। Ashish, we are not able to hear you. You have Yes, unmuted yourself. Yes, yes. Now we can hear. Yes, Ashish. कौन सा ये कंपनी तीन है कंपनियां आपका? थी। ओके, PV तो 3 में कौन सी कंपनी पहले लेंगे बताओ? ले ले PVR ले ले हाँ? PVR पीवीआर, चलो पीवीआर। आशीष, आपकी कंपनी के बारे में आप क्या बताना चाहोगे हमें? प्लीज एक्सप्लेन, क्या जानकारी मिली पीवीआर के बारे में? यस सर, PVR में ऐसा है कि सेल्स उसका बहुत बढ़िया है, एवरी ईयर वो ग्रोथ हुआ है सेल्स में बढ़िया, कि दैट इज ऑलरेडी 33 टाइम्स ग्रोथ किया है उसने। ओके, PVR 33% ग्रोथ हुआ है, लेकिन कंपेयर टू ग्रोथ ऑफ सेल्स में प्रॉफिट उसका उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, 5 टाइम्स ही बढ़ा है। राइट। ऐसा क्यों हुआ फिर आशीष? ऐसा नहीं होना चाहिए कि 33 गुना तुम्हारा धंधा बढ़ा पर तुम्हारा प्रॉफिट खाली 5 गुना बढ़ा, क्यों ऐसा? सर इसमें ऐसा हुआ है कि प्रॉफिट भी उसका 4 बार देखिए कम हुआ है। इतनी हिस्ट्री में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल 4 है। बार प्रॉफिट कम किया। हाँ वॉलेटाइल ज्यादा है, और दूसरा कि उसका मार्जिन भी पहले अच्छा था, लेकिन अभी मार्जिन धीरे धीरे कम हो रहा है, कई बार कम हो रहा है मार्जिन। ओके, और उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। राइट, इनके मार्जिन कम है। देखो आशीष, क्या समझने का बोलो, सबसे पहले आपने बोला कि 33 टाइम धंधा बढ़ा है, तो ये गजब की बात है। ये कहता है कि दिस इज अ डिमांडिंग इंडस्ट्री। जब आप डिमांडिंग इंडस्ट्री का लिस्ट बनाते हो और पीवीआर की इंडस्ट्री नहीं डालोगे तो वो गलत बात है। ये इंडस्ट्री ऐसी है, हमने पहले पुराने जमाने में थिएटर कैसे हुआ करते थे, एक सिनेमा हॉल था, हम लोग जाते थे, वो 25-30 रुपए का टिकट है ना, चूहे दौड़ते थे। और आज का सिनेमा हॉल कैसा है? मल्टीप्लेक्स। तो पीवीआर कुछ नया लेके आया, आइनॉक्स आया और पूरी नई सिस्टम आई। पहले इन लोगों ने मेगा सिटी में लॉन्च की, फिर मेट्रो में, फिर बड़ोड़ा में आई, फिर नडियाद भी गई, छोटे छोटे शहरों में गए। तो कोई भी ऐसा सेक्टर जो इमर्जिंग होता है उसमें आपको ये धंधा मिलेगा। इसीलिए मैं आप सबको बार बार इमर्जिंग सेक्टर की बात करता हूं, क्योंकि नहीं तो इतना बढ़िया ग्रोथ नहीं मिलेगा। लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट भी है, अगर इनके धंधे 33 गुना बढ़े इट इज पॉजिटिव, पर प्रॉफिट खाली 5 गुना बढ़े है इट इज वेरी नेगेटिव। व्हाई इट इज नेगेटिव? क्योंकि इतने इनके प्रॉफिट बढ़ने चाहिए थे, पर क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि ये कंपनी पे भी डेब्ट है। जैसे हम वीबीएल की चर्चा कर रहे थे वैसे ये कंपनी पे भी डेब्ट है, जिसकी वजह से मार्जिन इनके बहुत कम है। राइट, देखो यहाँ पे, तो इसीलिए डेब्ट कितना देखो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि नहीं? हम 10-15 साल शेयर रखेंगे और सोचो प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो कितना नुकसान हो जाता है अपने को। देखो है डेब्ट, कितनी डेब्ट है दिख रही है आपको?
आशीष 500 करोड़ ये लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो 5000 करोड़ की तो लोन हुई कि नहीं इनके सर पे, राइट? लेकिन ये ऐसा नहीं है। अब तक प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा, एवरीबडी हु आर लिसनिंग दिस वीडियो, till now we can estimate till 2019 that if your company is paying debt of around interest of around 112 crore, you can say that this company would be having around 1000 crore debt. But from this year 2020, results have changed for whole India. From 2020, lease is also included in debt. Now the companies like PVR, Jubilant Food, this DMart, these all companies are having their several properties on lease, and that is the reason you will see that their interest or lease amount has increased. तो घबरा मत जाना, ये मत सोचना कि बहुत डेप्थ बढ़ गई है, राइट? ये लीज के कारण है, पर फिर भी 1000 करोड़ भी कम नहीं जो अब तक थी, राइट? कंपनी पे इंटरेस्ट डेप्थ है जिसके कारण इनके मार्जिन सफर करते हैं, बराबर आशीष? अब हम ये भी देखेंगे कि कैसे कंपनी का डेप्थ चेक किया जाए, राइट? लेकिन अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे रहते हैं। क्या करेंगे आशीष, बोलो पीवीआर में, मुझे बताओ क्या करूं मैं? सर इसमें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत कम है। तो राइट। इसने आशीष कभी भी लॉस किया है इतिहास में? कभी भी नहीं किया लॉस, है ना? प्रॉफिट कंसिस्टेंट है, देखो बहुत कम मार्जिन है, लेकिन फिर भी इनके अंदर इतनी तो मास्टरी है कि शेयर होल्डर को प्रॉफिट लाके दे दो, कुछ भी करके, कॉस्ट इफेक्टिव रह के। सो दिस इज गुड थिंग। ये बात भूलने की नहीं। कभी आपको डर लगेगा, अरे यार ये साल क्या होगा पीवीआर का, ये साल तो बहुत मार पड़ेगी कंपनियों को, कोरोना है, लेकिन फिर भी ये सब कंपनियां कैसी है जो बाकी के 6 महीने में जबरदस्त मेहनत करेगी। जैसे ही बाजार खुलेगा ना, ये इतनी क्रिएटिव आइडियाज लेके आएगी कि आप अपने घर नहीं बैठ पाओगे, आपको भी लगेगा चलो पीवीआर जाके आए। ये ताकत होती है इन मैनेजमेंट की, राइट? आप आशा रख सकते हो कि ऐसी कंपनियां प्रॉफिट करें, राइट? लेकिन आपने जो बताया बात सही है कि बहुत ज्यादा वो नहीं रख सकते क्योंकि मार्जिन बहुत ही कम है, बराबर है? 100% डिमांडिंग इंडस्ट्री है, तो ये बात बिल्कुल सही है। पर अगर मुझे कोई कंपनी यहाँ पे मिले जिसपे कम डेप्थ हो तो मैं यहाँ पे निवेश कर सकता हूँ। बाकी बहुत बड़ी रकम में पीवीआर में नहीं लगा सकता हूँ, क्यों? ड्यू टू देयर डेप्थ, राइट आशीष? और कौन सी कंपनी थी आपकी इसके अलावा? उसके नीचे ही है सर, नीचे ही है। अच्छा, सेम शीट में इसके नीचे तो ये कौन सी थी? कोई और? सेम शीट में ही है। अच्छा, सेम शीट में है, राइट। चलो ये आपने लिखा, बहुत बढ़िया किया आशीष, ऐसे नोट लिख देने के, नहीं तो हम भूल जाते हैं ये चीजें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। yes. और उसका प्राइस का भी है ना, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है स्टॉक के प्राइस इसमें कौन सी कंपनी में? पीवीआर बराबर है। बहुत आशीष, फ्लक्चुएशन है प्राइस में भी। इस साल प्राइस फ्लक्चुएट होना ही चाहिए, क्योंकि पीवीआर बेचारा कितना 2 महीना बंद रहा कि नहीं? अब ये एक ऐसा धंधा है, देखो एफएमसीजी थे, फार्मा थे, कई इंडस्ट्री, 50% कंपनियां तो ऐसी थी जिन्होंने लॉकडाउन में भी धंधे किए हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री बेचारी ऐसी है जिनका 0 टर्नओवर था। तो आप ये साल कम से कम एक क्वार्टर निकाल तो 25% से धंधे डाउन होने चाहिए। तो आप अगर निवेशक हो तो आपको तैयारी तो रखनी पड़ेगी कि ये जो प्रॉफिट आप देख रहे हो 6 रुपए का, ये नहीं मिलेगा इस साल, आधे प्रॉफिट हो जाएंगे। तो आपको पहले से पता है आशीष कि आपको इस साल खाली 3 रुपया मिलने वाला है, तो भाव भी तो टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? और उसमें दूसरी चीज ये हो रही है कि सर इसका जो वॉलेटिलिटी है ना, तो जब भी हाई से ये शेयर निकलता है ना तो 70% गिर जाता है। बराबर है क्योंकि मार्जिन बहुत कम है, राइट? तैयारी रखो ये हाई वॉलेटिलिटी, बराबर है, सही बात है आपकी। गुड, बढ़िया नोट किया आपने।
यानी कि ओके, जितना भी रेड मार्क किया है उसमें सही हुआ है। राइट। अच्छा, और ये टीम लिस्ट क्या है? टीम लिस्ट इसका क्या है कि ग्रोथ अभी यानी कि अभी नई शुरुआत हुई है 2016 में, लेकिन उसका सेल्स उसका एक्स में ग्रोथ देखे तो 2.6 ही है उसका, अभी ज्यादा नहीं है क्योंकि अभी शुरुआत में नई कंपनी। हाँ देखो, ये नहीं कंपेरेटिवली देखने का प्रॉफिट आशीष, उसका अभी कम। आशीष ये 2.6 मत देखो, क्योंकि 5 साल में तो इतना ही होगा ना। 5 साल में आप 15 गुना नहीं एक्सपेक्ट करोगे, इसीलिए हम CAGR में कैलकुलेट करते हैं। पता है CAGR और ये गुना में क्या डिफरेंस है? गुना आपको सही स्टोरी नहीं कहता है, पर CAGR आपको एग्जैक्ट स्टोरी कहता है, क्योंकि इसमें एन आता है। एन क्या है? एन में आप नंबर ऑफ ईयर डालते हो, गुना में नंबर ऑफ ईयर नहीं डालते हो, बराबर है? तो CAGR से स्टोरी बताओ क्या है इसकी। CAGR सर इसका 5 इयर्स का तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट का CAGR बहुत कम आ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन। राइट, सही बात है। हाँ 2.66 ही आ रहा है उसका, राइट, ऐसा हो रहा प्रॉफिट है। और इनके इसका नहीं बढ़े हैं। करेक्ट। हाँ करंट ईयर ग्रोथ देखे उसका तो 16.93% है, लेकिन उसका वो भी माइनस में जा रहा है करंट ईयर का प्रॉफिट प्रॉफिट। बराबर है, कोई बात नहीं। एक चीज आशीष क्लियर रखो कि पिछले 5 साल में धंधे 21% से बढ़े हैं, मतलब हाई डिमांड में है ये इंडस्ट्री। ये भी एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है। इमर्जिंग इंडस्ट्री की कंपनियां जनरली आपको कम मार्जिन वाली मिलेगी। आपने जो भी देखी, PVR हो, टीमलीज हो, VBL जैसी इंडस्ट्री देखी, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, तो इनके मार्जिन कम है। लेकिन अगर आपको इमर्जिंग इंडस्ट्री में डेप्थ फ्री कंपनी मिलती है तो सोने पे सुहागा होता है। कैसी कंपनी कह रहा हूं आशीष? जिसपे कम डेप्थ है। हमने देखा PVR पे डेप्थ है, VBL पे डेप्थ है। आपने टीम लिस्ट का डेप्थ चेक किया है? अच्छा है कि कैसा है? नहीं सर वो नहीं चेक किया। ओके, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा अगर आप जब डेप्थ चेक करते हो। ये मैंने टीम लिस्ट ओपन किया कि मुझे पता तो चला ये सेक्टर का ग्रोथ जबरदस्त है। कैसा है डेप्थ बताओ मेरे को। 5,000 करोड़ का टर्नओवर और 8 करोड़ का इंटरेस्ट पे करने का। ये प्रॉफिट कर रहे 40 ये करोड़, लो डेप्थ इनके लिए 8 करोड़ पे करना बड़ी बात है, मुश्किल चीज है? आशीष, 40 लो करोड़ डेप्थ के प्रॉफिट करने वाली कंपनी लो डेप्थ है, तो यहाँ पे आप बड़ा निवेश कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कंपनी इज लो डेप्थ, ग्रोथ जबरदस्त है। अब जैसे धीमे धीमे आने वाले समय में हम प्रॉफिट को भी ग्रोथ के साथ दौड़ता हुआ देखेंगे, तो हम देखेंगे कि ये कंपनी 15 से 20 गुना 2-3 साल में ही हो जाए, जब रैली आए तब। आपको हाई कॉन्फिडेंस के लिए डेप्थ साइड पे हाई कॉन्फिडेंस चाहिए, जो ये कंपनी दे रही है। डिमांड ह्यूज है। अब ये साल देखो, ये साल तो सब कंपनियां मंदी में है, पर ऐसे साल भी अगर ये कंपनी का डिमांड 17% है, इसे कहते हैं हाई डिमांडिंग इंडस्ट्री। पूरी दुनिया के बुरे हाल है, फिर भी ये कंपनी जबरदस्त चल रही है कि नहीं है? तो आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। बराबर है आशीष? और क्या आपका इसमें इंडिकेशन है ये कंपनी में? सर ये कंपनी में ये चीज ऐसी है कि इसका प्रायर डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, बराबर है। कि इसके पहले का आपको बिफोर कोई भी एनुअल रिपोर्ट में से नहीं मिला प्रायर डेटा? नहीं नहीं सर नहीं मिल रहा है, अवेलेबल नहीं है। ओके, राइट। नहीं क्यों मिला नहीं मिला होगा आपको? शायद ये कंपनी की शुरुआत नहीं हो सकती है। देखो, ये 2016 है, आपने ये एनुअल रिपोर्ट में ट्राई किया बिजनेस देखने का, बराबर? हाँ। अगर एक मिनट, एनुअल रिपोर्ट 2015-16, जस्ट अ मिनट। ये 16th एनुअल जनरल मीटिंग है, लिखा है यहाँ पे। कितने साल हुए कंपनी को? हाँ 16th, यानी अभी हाँ, नई 16 साल। कंपनी है। 16 साल तो कंपनी को बने हुए है खाली, राइट? देखते हैं, अगर इनके डेटा आपको मिलते हैं तो थोड़े कम से कम हमें है ना सेल्स के डेटा मिल जाए ना, तो हो गया हमारा काम। बाकी सब तो चलो कोई दिक्कत नहीं है।
देखो ये दिए हुए हैं ना आशीष, 2012 से दिए हुए। आपने कब से लिखे? देखो 2015 से लिखे है ना, यहाँ पे 2012 से डेटा देखो, राइट। ले लेना ये डेटा ताकि हमें एग्जैक्ट ग्रोथ पता चले। कम से कम 2012 से तो है हमारे पास, राइट। चलो अभी मैं बंद कर देता हूँ, थोड़ा समय देके ये लिख लेना आप, राइट। ओके, क्या है आपका इंडिकेशन आमरा राजा बैटरी पे? आमरा राजा बैटरी, यस। यहाँ पे आशीष ये आप कह सकते हो, क्योंकि कंपनी के 20 साल के डेटा लिए हैं, तो आप कह सकते हो कि आमरा राजा बैटरी 50 गुना धंधा बढ़ा, इसीलिए 32 गुना प्रॉफिट बढ़ा, और इसीलिए इसका भाव कितना गुना हुआ है। यहाँ पे तो स्प्लिट बोनस होगा, नहीं तो आप कह सकते हो कि इसका भाव भी 50 गुना हुआ है, राइट। बताइए मुझे आमरा राजा बैटरी में क्या कहना चाहोगे आप? सर इसमें ऐसा हुआ है कि प्रॉफिट है उसका, सेल्स तो एक भी बार उसका रिड्यूस नहीं हुआ है, कभी डाउन नहीं हुआ है, राइट। राइट, कभी नहीं। देखो पिछले साल भी नहीं हुआ आशीष, पिछले साल मुझे आप ऑटो की कोई कंपनी बताओ जिसका धंधा नहीं घटा है ऑटो में। आपको नहीं मिलेगी ऐसी कंपनी, बहुत मुश्किल है, पर आपको ये कंपनी मिली जिसमें इतनी ताकत है कि 2 साल से ऑटो मंदी में है, फिर भी मैं धंधा नहीं घटा रहा हूं। इसे क्या कहते हैं? वेल्थ क्रिएटर, एक इंडिकेटर। यानी जैसे ही अपटिक आएगा इसका धंधा वापस, जैसे पहले 50 गुना हुआ है, ऑटोमोबाइल में अपटिक आई नहीं कि ये आमरा राजा बैटरी का धंधा बढ़ना चालू, राइट। प्रॉफिट के क्या हाल है, राइट। 5-6 बार प्रॉफिट। ओके, तो कभी मेरे को भविष्य में ये तो नहीं बोलोगे आशीष, कभी आशीष ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि पीयूष भाई ये क्वार्टरली रिजल्ट बहुत खराब आए हैं, बेच दूं क्या? नहीं, उसको कम से कम एक्सपर्ट रखना है फ्यूचर में भी कि 5 से 6 बार वो रिड्यूस हो सकता है। हाँ, अब हम आमरा राजा बेचेंगे तो मैं ऑटो में और क्या खरीदूंगा, है कि नहीं? ऑटो एंसिलरी में दूसरी क्या लूंगा ये बेच के, ये क्वेश्चन करना है। अगर बेस्ट कंपनी है कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बराबर है। ओके, इसमें पैसा बना है इन्वेस्टरों का। हाँ बोलो बोलो, क्या समझा रहे थे? इसमें ऐसा है कि इसकी इक्विटी बहुत कम है, खाली देखा जाए तो। हाँ, 17 करोड़ की इक्विटी पे ये लोग 661 करोड़ का 651 का प्रॉफिट। राइट। देखो आशीष, तो उसकी 17 करोड़ की इक्विटी, कंपनी पे डेब्ट है नहीं, मतलब एक ऐसी कमाल की कंपनी है। 17 करोड़ की खाली मुड़ी है और 600 करोड़ का प्रॉफिट करते हैं, वेल्थ क्रिएटर। इनके स्टेक होल्डरों ने जबरदस्त पैसा कमाया। अब बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो यहाँ से, राइट। चलिए बढ़िया बढ़िया, गुड। ये ईपीएस इसका 39 है आशीष। रियल ईपीएस कितना होना चाहिए इसका, वो बताए आपको? देखो कैसे गिनने का, जब ये कंपनी 20 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, 21 करोड़ का, तब इसका ईपीएस कितना था? 20। सिंपल एकदम गोला मेथड। At 20 crore profit, their EPS was 20. At 660 crore profit, what should be their EPS? Approximately 661. एकदम सिंपल। यानी ये 660 के बदले 40 क्यों है? स्प्लिट बोनसेस, है ना। अब अंदाजा लगाओ, आपने ये कंपनी अगर खरीदी होती 2001 में, उसका भाव कितना था? 4 रुपया और 1 रुपया, बराबर है। इसकी अर्निंग कितनी थी? नहीं नहीं नहीं, लो प्राइस हाई, ये तो पी है ना, ये है 20 से 4 रुपया। कंपनी की अर्निंग उस समय 20 रुपीज थी, आज वही कंपनी की अर्निंग 650 रुपया हो गई है। आपने जितना निवेश किया उससे कितना गुना ज्यादा आपको हर साल मिलने लगा है। ये है वेल्थ। कब तक मिलेगा? जब तक इंडिया में बैटरी मिलेगी, बिकेगी,
आपके पास पैसा जिंदगी भर आने वाला है, राइट? यस ओके, तो क्या करेंगे बोलो अमरा राजा बैटरी? कोई थॉट आप देना चाहोगे अमरा राजा बाय पे? ऑन डिप्स पर, बाय ऑन डिप? इसको बाय ऑन डिप्स के पर, हाँ उसके बेस पे अपन उसको वी कैन एक्यूमुलेट। अच्छा, आपने भाव नहीं लिखा है ना, कौन से भाव पे लेना है इसको? नहीं सर वो भी नहीं लिखा है क्योंकि थोड़ा काम बाकी रहेगा, वो नहीं ओके, लिखा कोई है। बात नहीं। मेरे को यहाँ एक प्रॉब्लम लग रहा है यार ना, ये हाई प्राइस और लो प्राइस में कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। क्यों बताओ? क्योंकि जब आपके शेयर का अर्निंग 20 रुपया है, सॉरी प्रॉफिट अर्निंग 20 रुपया है, तो 20 रुपए की अर्निंग वाला शेयर 20 रुपए पे नहीं मिल सकता है। ये तो 100% यील्ड हुई, तो एफडी के बदले लोग यही ले लेते, है ना? कुछ प्रॉब्लम है, ये प्राइस को थोड़ा देख लेना आप, बराबर है ठीक ना? है ओके थोड़ा चेक कर लेना, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो आपका रेक्टिफाई हो जाएगा, राइट? सीधी बात है ना आशीष, कि अगर आपको कोई कंपनी 20 रुपया अर्निंग दे रही है तो उसका भाव करीबन 100-150 तो होना ही चाहिए ना, राइट? ओके, चलिए तो नेक्स्ट पहुंचे हम लोग। श्रीनिवास जी, आपका कहना था वॉइस इज नॉट क्लियर आशीष का, या यू आर राइट। चलो अभी थोड़ा हम जोर से बोलने का प्रयास करेंगे, राइट? ओके, चलिए थैंक यू आशीष। वेरी गुड। और आशीष आपके काम से बहुत खुश हूं मैं, वंडरफुल। गोपाल कृष्णन, यस गोपाल कृष्णन जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? And let me check on which companies you have worked. Yes, Gopal Krishnan ji. Kindly. Yes. Hi Piyush, I couldn't do it, so I'm just observing what others have done, Piyush. Okay. Yeah, I'm And sorry about it. yeah, no problem. Let me just check which company I have given to you. Just a minute. Let me Sure, check. sure. Okay, so you were having Apollo Hospital and Jubilant Food. Right? No problem. See, I will request anybody who can complete this work, right? Because both of these companies are very important for future. Apollo Hospital is largest hospital of India, and Jubilant Food largest restaurant of India, organized restaurant, right? So if anybody from you can complete the work, it will be better for us to research, right? Okay. So let me move to next person, Karan Rajji. Yes, Karan Rajji, you can unmute yourself. Namaskar, sir. Namaskar. Yes. Okay, which company you have researched? Godrej CP, LTTS, or